very good morning to all of you. We are starting our new subject, that is economics, which is same for the students of arts stream as well as commerce stream. Today, I will be introducing you with the subject. So just have a look. In economics, you have to study total of 4 books. In 2 years, 11th and 12th, you have to cover 4 books of economics. In class 11th, you have to cover 2 books, that is microeconomics and statistics. Class 11th mein, you have to go with microeconomics and statistics. And in class 2, you have to go with class 12. You have to go with macroeconomics and Indian economic development. Now, this 4th book of economics is completely theoretical. जो आप 12th में पढ़ेंगे, it is a kind of history. जो आपने 9th-10th में SST में political science वाला ये economics वाला जो part पढ़ा है, उसके काफी chapters उसमें repeat होंगे. For example, poverty, for example, human capital formation. These are the chapters that are going to repeat in this part. And the part 1, macroeconomics, is theory plus practical, quite interesting. Then if we talk about economics of class 11th, you have to go with micro and statistics. Statistics, I think you all know what is statistics. It is something which deals with numerical statements, and the basic chapters are mean, mode, median, right? Basically, we are going to study about mean, mode, and median in statistics. Then after, have a look. Some basic things. I guess many of you already know this. Who is the father of economics? Adam Smith. Before starting the subject, you must know what is economics and who has given economics. Okay, so have a look. What is economics? Economics is basically a subject for all of you. So we will discuss it later. Before that, let's just make it clear in our mind that this subject was given by Adam Smith. Adam Smith, he was known as the father of economics. You have to keep it clear in your mind. Adam Smith, known as father of economics, and he has done the subject he has given the subject economics. You have to highlight this. Then you have to highlight this. He has written the book Wealth of Nation. This is the name of his book. He has written a book named as The Wealth of Nations. In this book only, he has given about economics. Now have a look. According to Adam Smith, economics is a science of wealth. Adam Smith ke according, what is economics? Economics is simply a science of wealth. एक ऐसी science जो हमें wealth create करना सिखाती है. Now, what is wealth? Can anyone tell me? Anyone of the class who can tell me the meaning of wealth? Okay, that's great. Karan Gupta will tell us. Very good. Yes, Karan. Ma'am, wealth is money, ma'am, related to money. Wealth is related to money. Very good. Okay, Yugansh, tell me, can we include other things also in wealth other than money? Ma'am, according wealth is related to money. Wealth is related to money. That's correct. But can we include anything other than money also? Yes, Pankaj. Yes, ma'am. Yes, for example. For example, capital, banking, and Yes, very good. Have a look. Very good, Pankaj. Have a look, everyone. Wealth is not only confined till money. Although the main part of wealth is money only, but wealth includes many other things which can help in creating money, right? All the resources which can help us in creating money are also treated as wealth. Have a look on the screen. आपको wealth के बारे में पता चल रहा है. Examples of wealth दिए हुए हैं आपको. Deposit account, the money we have deposited in our bank, shares, bonds, real estate, oil and gas, coal, beautiful beaches, even human being, all these are examples of wealth only. Now have a look. What Adam Smith has said? Adam Smith said that the theory which will help in preservation and creation of this wealth,
will be treated as economics. It means the science of wealth is economics. Now have a look. Here I am. Wait. So here I have written one more definition of economics for all of you. Have a look. What is economics? For you guys, what is economics? It is basically a subject which you are going to study in your curriculum, right? Of 11th and 12th. It is a subject. So we can start the definition as economics is a subject matter. हम सबके लिए तो what is economics? It is simply a subject matter. आगे देखिए. अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे हम, है ना? सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो स्टडी करना है. तो देखते हैं इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं. तो that deals with economics की डीलिंग है with rational management. Rational management. Can anyone tell me the meaning of rational management? Many of you who were there in the first class. Yes, Pankaj. Ma'am, management in a planned way, pre-planned way. Yes, management in a pre-planned way where we try to optimize our resources, where we try to reduce the wastage of our resources. Okay, listen to me. जो बच्चे पहली बार क्लास में हैं, don't just think कि कुछ छूट जाएगा. This is only the backup of first class, right? So we are going to cover all the things that we have discussed in our that class. So just have a look. Economics, it is a subject matter. And the subject deals with rational management, means the management in which we plan everything. हम अगर easy way में कहें तो एक ऐसा management जो systematic है, जिसमें आपने समझदारी से सारे decisions लिए हैं. तो what is economics? Economics is a subject matter. Make sure बेटा मैं आपसे सुनूंगी ये definition just after my completion of my explanation. Now have a look. Rational management करना किसका है? We have to manage our limited resources. हमेशा हमारे पास resources limited हुआ करते हैं, कम हुआ करते हैं. For example, your pocket money. For example, money earned by your family members. कभी किसी को लगता है क्या, किसी ने घर पे सुना है बहुत पैसा है यार, आराम से खर्च करो? नहीं, हमेशा ये कहते हैं कि देख देख के खर्चो. Whether earning is rupees 2 lakh per month or earning is rupees 20,000 per month, वो अर्निंग लगती तो हमें लिमिटेड ही है, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स उस अर्निंग के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, स्प्रेड आउट होती रहती है. तो नाउ हैव अ लुक. आई एम जस्ट रिपीटिंग द डेफिनेशन अप टू दिस पार्ट. What is economics? Economics is a subject matter, right? It is a subject which we are studying in our curriculum. Now, as it is a subject, it deals with something. So our subject deals with rational management. It means समझदारी वाला management. किसका? Of limited resources. Now have a look. जो रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं वो रिसोर्सेस हमेशा कम होते हैं, प्लस उनके यूजेस हमेशा अल्टरनेटिव होते हैं. यानी हमारे पास रिसोर्स पहला तो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, और दूसरी बात ये होती है कि जो रिसोर्स अवेलेबल है उनके बहुत सारे यूजेस पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो जो वर्किंग पीपल होते हैं, अब जो हम बच्चे हैं, आप लोगों को, आपके पास तो बहुत टाइम है, अनलिमिटेड. 11th 12th में कहीं कहीं लगेगा नहीं यार टाइम कम पड़ रहा है, क्या क्या करें? स्कूल की क्लासेस अटेंड करें, पढ़ाई करें, कि खेलें, एंजॉय करें, मोबाइल चलाएं, होमवर्क करें, क्या क्या करें? कभी कभी तो पजल्ड हो जाते हैं ना, टाइम कम मिल पाता है. तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि रिसोर्स लिमिटेड तो है, प्लस उस रिसोर्स के यूजेस भी तो बहुत सारे हैं. अगर मैं बात करूं कि दिन में 24 आवर्स अवेलेबल है, तो ये लिमिटेड होने के साथ साथ इसके बहुत सारे यूजेस पॉसिबल है. हो सकता है मैं अपने टाइम को आईपीएल आ रहे तो मैच देखने में लगाऊं तो मेरे 3 से 4 घंटे चले जाएंगे. हो सकता है मैं अपने टाइम को आपके लिए पीपीटीज प्रिपेयर करने में लगाऊं. हो सकता है मैं अपने टाइम को किसी मूवी देखने में इन्वेस्ट करूं. हो सकता है मैं अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने में लगाऊं, राइट? तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज रिटन ओवर देयर? Limited resources having alternative uses. It means हमारा जो रिसोर्स है वो रिसोर्स क्वांटिटी में तो लिमिटेड है, साथ रिसोर्स के यूजेस भी बहुत सारे हैं. आगे देखिए,
Now, why we need to manage the resources? We need to manage the resources in order to get maximum satisfaction of unlimited human wants. हमारी जो जरूरतें हैं ना, वो जरूरतें अनलिमिटेड है, बहुत सारी wants है. उन सभी wants को fulfill करने के लिए हम resources का management कर रहे होते हैं. अब देखिए, इस definition को आप अपनी real life से relate करके देखिए, हम सब पे applicable है, बिल्कुल 100% applicable है. 10th बोर्ड्स के एग्जाम ऑल्दो आप लोगों ने नहीं दिए थे, दिस वाज द लकी बैच, राइट? बट अगर हम बात करें कि 10th बोर्ड की जब वो प्रिपरेशन टाइम चल रहा था, तो हमारे पास जो टाइम था, जो पढ़ाई करने का टाइम था, वो लिमिटेड था. दिन भर में हम बात करें तो हम 8 आवर्स अलग कर सकते हैं, राइट? कुछ टाइम तो सोने में चला जाता है, कुछ खाने पीने में, बेसिक एक्टिविटीज में चला जाता है, और कुछ पता ही नहीं चलता, इधर उधर होते होते ही टाइम लग जाता है. इतना दिन भर में 1-2 घंटे तो हमें पता ही नहीं चलता, इधर से उधर किया, ये किया, वो किया, उसी में लग जाता है, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि हमें 10th बोर्ड्स की तैयारी करनी है. तो सबसे पहली चीज, हमारे पास टाइम लिमिटेड है. दूसरी चीज, उस टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. या तो हम अपनी बुक्स से थॉरोली रीडिंग करें, या हम कोई एक्स्ट्रा सैंपल पेपर की बुक से तैयारी करें, या हम कोई यूट्यूब वीडियो देख लें किसी टॉपिक के बारे में, या हम सेल्फ नोट्स बना के तैयारी करें, 1 मार्क क्वेश्चंस बना के तैयारी करें. यानी अल्टरनेटिव ऑप्शंस है हमारे पास लिमिटेड टाइम को यूज करने के. फिर हम क्या करेंगे, हम इस लिमिटेड टाइम को इस तरीके से यूज करेंगे, अपना टाइम टेबल बना के इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट है उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो पाए. कि हाँ, एक जो बढ़िया बच्चा होगा वो क्या चाहेगा कि नोट्स भी बन जाए, 1 मार्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, सैंपल पेपर्स भी पढ़ पाऊं, सब कुछ कर पाऊं. तो वो इस तरीके से इकोनॉमिक्स अप्लाई करेगा कि उसकी वांट का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पे हो सके. So, is it clear to all of you? If yes, then show me a thumbs up. Be quick. If the meaning of economics is clear to you, be quick and show me a thumbs up. Okay, that's great. So now, as you are showing me a thumbs up, I'm giving you 1 minute. Just revise the definition, and then after I will be unmuting you so that you can tell me the meaning of economics, right? Be quick, have a look. What is it? And make sure, don't go with rectification. We simply have to understand the concept. So what is economics? Economics is a subject for us, right? ये हमारा एक subject है. Now subject है तो dealing करेगा. किससे dealing करेगा? With rational management. किसका management करना है? Limited resource. जहां जहां resource word आएगा आपको addition कर देना है, having alternative uses. यानी resource कम तो है, उसके साथ साथ में uses भी बहुत सारे हैं. क्यों करना है? ताकि हम अपनी wants का maximum satisfaction कर सके. Okay, जिसका हो जाए, raise your hand for the definition part. That's great. Rest of the students, just take a screenshot because I'm just changing the screen as I will be asking the questions from the students. Okay, that is great. Many of the students have done are done with the definition. Okay, start. Let's just start. पहला lucky draw निकालते हैं. Let's see who is the number 1 to give the answer. So Falguni will give the answer. Yes, Falguni. Economics is a subject matter that deals with rational management of resources which are limited for alternative uses that satisfies our maximum requirement. That satisfies our unlimited requirements in a maximum way. Very good. Okay, next lucky draw is of Manasvi. Yes, Manasvi. Ma'am, Manasvi? economics is a subject matter that deal with rational management of limited resource having alternative uses in order to get maximum satisfaction of unlimited human wants.
वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जिन्होंने आंसर दिए उनके लिए भी और जिन्होंने हैंड्स रेज किए उनके लिए भी। So what is economics? I hope it is clear to each and everyone sitting in my class. It is a subject matter that deals with rational management of limited resources having alternative uses in order to get maximum satisfaction of unlimited human wants. तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, राइट? और मेरे हिसाब से मीनिंग क्या है ये आप सभी बच्चों को अच्छे से याद हो गया होगा कि हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। अब आगे देखिए बेटा, हम जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज मैं आपको सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडेक्स एक्सप्लेन करूंगी। बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द इंडेक्स ऑफ आवर बुक कि आप अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीजें सुनते हैं। उसके बाद में कल हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, पहली बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में आप पढ़ने वाले हैं, इसकी 2 क्वालिटीज है। क्वालिटी नंबर 1 तो ये कि ये आपके लिए 100% न्यू रहेगी। इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपने पहले नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट होने वाला है, सब कुछ नई नई चीजें पढ़ोगे, एकदम न्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये वो इकोनॉमिक्स है जो आगे हमारे साथ बहुत दूर तक चलने वाली है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ठीक है? इसकी बेसिक चीजें तो आप अभी भी अप्लाई करते हो। जैसे आप मम्मी के साथ ड्रेसेस खरीदने जाते हो, राइट? आप कपड़े खरीदने जाते हो, बर्थडेज पे जाते हो, शादियां होती है तो जाते हो, दीपावली पे जाते हो, तो तब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। और आप चॉकलेट्स खा रहे होते हो तब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे होते हो। Even when you are consuming any of your favorite food, you are applying microeconomics over there. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा क्या क्या क्वालिटीज है। 2 क्वालिटीज तो स्पेशल सी है। Number 1, this is a new subject for you, so it can be very interesting, right? And number 2, it is actually quite interesting as you are going to study about various principles and various laws that are related with your daily life only. Okay. Number 3, quality number 3 is this, that this subject contains a combination of theory, practical portion and graphs. आपको इसमें theoretical भी पढ़ना है concept, कुछ graphs भी बनाने हैं और ग्राफ बनाने के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल टेबल्स भी सॉल्व आउट करनी है। न्यूमेरिकल कैसे? सिंपल प्लस माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई भी नहीं आता है माइक्रो में, तो सिर्फ प्लस माइनस। डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत थोड़ा सा कहीं आ सकता है, तो इजी सा है। अब देखिए क्या क्या पढ़ोगे वो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में आपको इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इकोनॉमिक्स क्या होती है, why do we study economics, what are the problems of economics, these are the basic things we are going to discuss in our chapter 1. Chapter 2, quite interesting chapter. You all are consumers, right? Even I am a consumer. So when we are a consumer, how does we satisfy our need and where do we stop? These are the things we are going to discuss in chapter number 2. What will we discuss? We will discuss as a consumer, where do we find equilibrium? New word for you. Equilibrium means state of satisfaction. So we will discuss about the satisfaction level of consumer in our chapter 2. Chapter 3, have a look. Demand. Demand आप सबको पता होगा, हम बहुत सारी डिमांड्स करते रहते हैं, राइट? हम मार्केट में जाके बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हैं और वो खरीद के लाते हैं। ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट चैप्टर है। आप पढ़ेंगे डिमांड क्या होती है, डिमांड से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। आपको जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, आपके भाई है, बहन है, मामा है, चाचा है, वैसे गुड्स के भी रिलेटिव होते हैं। कोलगेट का रिलेटिव होता है पेप्सोडेंट, तो कैसे रिलेटिव्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। शुगर का रिलेटिव होता है टी, मिल्क, तो कैसे ये रिलेटिव्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हैव अ लुक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिमांड कैसे कैसे चेंज होती है, कैसे कैसे बदलती है, उसके बारे में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन फंक्शन। हैव अ लुक, गिव मी अ सेकेंड। प्रोडक्शन फंक्शन,
इसमें हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो किस तरीके के रिसोर्सेस को यूज करता है और उन रिसोर्सेस में क्या क्या लिंक होता है। ये भी बहुत इजी सा चैप्टर है। तो 5 चैप्टर याद कर लीजिए, इनिशियल 5 चैप्टर्स के नेम। चैप्टर नंबर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, chapter number 3 demand, chapter number 4 elasticity of demand and chapter number 5 is production function। आगे देखें बेटा, 11 चैप्टर्स है टोटल आपके माइक्रो। चैप्टर 6 कॉस्ट। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे डायग्राम्स, जिसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ग्राफ कहते हैं, वो बनाने हैं। मजा आएगा आपको, इतने मजे आएंगे डायग्राम बनाने में, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। और न्यूमेरिकल्स करने में तो और भी मजा आएगा। So chapter number 6 is cost. We will discuss about cost, theory of cost. Now chapter number 7, revenue. What is revenue? Money received by a seller by selling any commodity. एक seller किसी चीज को बेच के जो money earn करता है ना, उसे revenue कहते हैं। तो revenue के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है तो प्रोड्यूसर को भी तो चाहिए होता है। तो 8th चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट, हाउ अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट और हाउ अ प्रोड्यूसर रीचेस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। चैप्टर 9 इट इज रिलेटेड विद सप्लाई। वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज सप्लाई, हाउ सप्लाई गेट्स चेंजेस। Chapter 10, we will discuss about the main forms of market. There are various forms of market. So we are going to discuss about all those forms of market. And last chapter, price determination. In this chapter, we will discuss 24 diagrams. और आपको 2 डायग्राम बनाने आ जाएंगे तो 2 के बाद बचे हुए 22 बहुत आराम से आ जाएंगे। तो हम बहुत मजेदार चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा इंटरेस्टिंग है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें हम न्यू पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। अब पहले इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अप टू दिस पार्ट यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह गया हो कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर मैम आप थोड़ा सा बता दीजिए क्या है, तो आई विल बी टेलिंग यू। नाम देख लीजिए स्क्रीन पे, चैप्टर 1 से 5 तक के भी एंड चैप्टर नंबर 6 to 11 के भी। अगर आपको लग रहा है किसी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बेसिक थिंग्स अभी बता दूंगी। एनीवन? नो? ऑल राइट, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। कुछ बेसिक चीजें आपको बताते हैं, उसके बाद में कल हम एकदम फ्रेश चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे विद प्रॉपर कंटेंट, राइट। अभी मैं आपको सिर्फ जनरल थिंग्स बताती हूँ, हैव अ लुक। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ले लिया, कल हम क्या शुरू करेंगे, चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो। अभी देखिए ये जो आपने नाम सुना माइक्रो, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स की अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो 2 मेन ब्रांचेस होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले आज से 2 साल पहले तक क्या हुआ करता था, इनका एक ग्रुप था, अब इनको ना अलग अलग कर दिया। ये साथ में मिलके शैतानी करते थे, बच्चों को परेशान करते थे, तो इनको अलग अलग कर दिया। जैसे जो नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं ना, वैसे। तो पहले ये दोनों साथ में रहा करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी क्लास में रहा करते थे, क्लास 12th में। और मिलके 12th बोर्ड वाले उन बच्चों को जिनको चीजें समझ नहीं आती थी उनको बहुत परेशान करते थे। तो इसलिए सीबीएसई ने डिसीजन लिया कि इन दोनों को क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। माइक्रो को डाल दिया जाए क्लास 11th में और मैक्रो को डाल दिया जाए क्लास 12th में, ताकि ये बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान ना करे। थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर देते हैं तो बच्चे सीधे हो जाते हैं ना, जैसे आपको किया होगा कभी ना कभी टीचर्स ने, उसी तरीके से। तो देखिए अब परेशान कैसे करते थे। एक्चुअली दीज बोथ आर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, और माइक्रो और मैक्रो दोनों में ऐसी कहानी है कि जो बच्चा ये सोचेगा कि मैं तो बुक देख के याद कर लूंगा, उसके लिए इम्पॉसिबल है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना। याद करना माइक्रो मैक्रो को पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। समझ आ गया तो आप बहुत, जैसे केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस होती थी उनको याद नहीं कर सकते थे, उनको समझ सकते थे। अगर हमने समझ लिया, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले याद कर सकते हैं बट उसका एप्लीकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट।
उसी तरीके से माइक्रो मैक्रो है। दोनों ही बुक्स ऐसी है जिनमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन ओनली यू कैन स्कोर। तो फिर सीबीएसई ने डिसीजन लिया कि इनका एक पार्ट तो डाल दिया जाए क्लास 11th में और एक डाल दिया जाए क्लास 12th में। अभी देखिए हम बात करते हैं ये होती क्या है। ये इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है। माइक्रो और मैक्रो क्या है? इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है? वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो इंडिविजुअल्स की स्टडी करेगा, एक एक यूनिट की, छोटी छोटी यूनिट की। और मैक्रो वो पार्ट है जो एग्रीगेट यूनिट्स की स्टडी करेगा। एग्रीगेट यानी सबको। अब एक एग्जांपल सुनिए। अगर मैं लयाल पब्लिक स्कूल की स्टडी करती हूँ, बीकानेर में बहुत सारी स्कूल्स है बट मैं सिर्फ एलपीएस की स्टडी करती हूँ, तो मैंने इंडिविजुअली एलपीएस को पढ़ा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैं बीकानेर की सभी स्कूल्स की स्टडी करती हूँ, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। अब उसी तरीके से वापस से सुनिए, अगर मैं लयाल पब्लिक स्कूल में क्लास 11th की स्टडी करती हूँ, सिर्फ क्लास 11th, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सभी क्लासेस की, क्लास प्रेप से लेकर क्लास 12th तक की स्टडी करती हूँ, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी सेम थिंग, माइक्रो भी हो सकती है, मैक्रो भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी स्टडी पे। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं लयाल पब्लिक के क्लास 11th के किसी पर्टिकुलर बच्चे को, जैसे कि युगांश को, सिर्फ युगांश की स्टडी कर रही हूँ, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैं पूरी 11th क्लास की स्टडी कर रही हूँ, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से मैं युगांश के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स देख रही हूँ, तो मैक्रो। पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के मार्क्स देख लिए तो माइक्रो। यानी जब भी स्टडी किसी इंडिविजुअल पार्ट की होती है तो वो बन जाती है माइक्रो, और जब भी स्टडी किसी एग्रीगेट सभी चीजों के ग्रुप की होती है तो वो बन जाती है मैक्रो। अब मैंने आपकी सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स देख लिए तो ये स्टडी हो गई मैक्रो, लेकिन मैंने आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स देखे तो ये स्टडी हो गई माइक्रो। मैंने आपकी क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स देख लिए तो ये हो गया मैक्रो। सिर्फ किसी पर्टिकुलर बच्चे के देखे तो ये हो गया माइक्रो। मैंने पूरी स्कूल के मार्क्स देख लिए तो मैक्रो, किसी इंडिविजुअल क्लास के देखे तो माइक्रो। किसी को डाउट है क्या माइक्रो मैक्रो में? डिटेल में तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बेसिक बेसिक जो बताया कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की है, इंडिविजुअल की, तो माइक्रो है। याद कैसे रखना है? देखो, MICRO, राइट। तो इसमें ये जो आई है, ये आई डिपेंड, आई किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए है। तो देखिए बेटा, याद करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, और मैक्रो की बात करते हैं तो हैव अ लुक। मैक्रो ए को हाईलाइट करना है, स्टडी ऑफ ऑल की जगह बढ़िया वर्ड हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट यानी सभी का टोटल, तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो। चलिए बेटा, मुझे कोई एग्जांपल दे दीजिए, कोई भी बच्चा। कौन सी स्टडी माइक्रो होगी, कौन सी मैक्रो होगी? बी क्विक। ओके, करण विल गिव द आंसर। यस करण। मैम जैसे मेरे पास 3-4 मोबाइल है, मैं एक ही मोबाइल को यूज करता हूँ और उसके बारे में पूरा ज्ञान है तो माइक्रो है, पर अगर चारों मोबाइल को करता हूँ तो वो मैक्रो है। वेरी गुड। जब हमने आपके घर के केवल एक इंडिविजुअल मोबाइल के बारे में बात कर ली, दैट इज माइक्रो, और जब हमने सारे मोबाइल्स को देखा, दैट इज मैक्रो। एनीवन एल्स? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग की साइकिल को चलाते रहें। यस कीर्ति। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी मैम गुड मॉर्निंग बेटा। मैम अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, और अगर मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। बिल्कुल,
वेरी गुड. जिस दिन आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हो, दैट मींस इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज मैक्रो. वेरी गुड. एनीवन एल्स? बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आ रहे हैं हमारे पास. Anyone else? Any example which you can give about micro and macro? Okay, have a look. We got two new examples of micro and macro. Now listen to me very carefully. I hope the first class is you got to know many new things in the first class. It was interesting for you. I hope this, right? And you have learned about the meaning of economics in this class. You have learned about the person who has given us the subject economics, who has introduced us with the subject. Now listen to me. You are supposed to be regular in the class of economics. Irregularity होते ही आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा बेटा. Today also I have noticed that 2-3 students have joined the class after 15 to 20 minutes. No issues. I will not scold you for anything. It is just I would suggest you to be on time in the class and be regular in the class, because you will get to know about the concepts only when you are regular in the class. अगर आप कोई भी क्लास बीच में स्किप कर देते हैं तो स्किप करते ही आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में. तो इसलिए अगर आपको सब्जेक्ट समझना है, बी रेगुलर इन द क्लास. एंड इन केस यू मिस एनी क्लास, जस्ट गो विद द यूट्यूब वीडियो. If it will be uploaded on your YouTube sites